شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی نے اس دفعہ صاحب دیوان شاعر مرزا شارق لہر پوری کی ادبی خدمات کے اعتراف کو لازم جانا۔ شاعر و ادیب رضوان احمد فاروقی نے اپنے مقالے میں کہا، مرزا اسد اللہ خان غالب کی روح یقیناً مسرور ہو گئی ہوگی۔ جو کام ان سے رہ گئے تھے ان کی تکمیل آج کے مرزا یعنی شارق لہر پوری نے اس طرح کی کہ حمدیہ دیوان تیار کر دیا۔ صدارت بالترتیب احمد ابراہیم علوی اور محمد فاروق جاذب صاحبان نے کی۔ قلم ردیف پر کم و بیش 30 شعراء نے کلام پیش کیا۔ حاضر ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ اب سنجے مصباح شوق صاحب کو سن لیا جائے، آپ کو حیرت نہیں ہوگی اور ممکن ہے کسی کو ضرورت ہو کہ اچھا ہے بعد میں بھاری شاعری سننا پڑے گی، ابھی یہ انہوں نے بھاری تلوار لگا دی، اب بعد والے دھیرے دھیرے سمجھ جائیں گے۔ یہ ربائی کے شاعر ہیں، خوب کہتے ہیں، ان کو بلانے کی مجبوری یہ ہے کہ ان کی مدد والدہ ان کی بیمار ہیں کئی روز سے، تو اس کو نہ کہنا چاہیے تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے حق میں پتہ نہیں کس کی دعا کب کس کے لیے کام ثابت ہو۔ دعا بھی کرنا چاہیے، ماں جیسا کہ کوئی رشتہ ملتا نہیں اس کے بعد، کوئی علم بدل نہیں ہے، وہ تشریف لائے اور اپنے کام۔ کرتاس پر روشن ہے خدا داد قلم، کرتاس پر روشن ہے خدا داد قلم، روکے سے نہ رک پائے گا آزاد قلم۔ کرتاس پر روشن ہے خدا داد قلم، روکے سے نہ رک پائے گا آزاد قلم۔ پڑھنے کے لیے چاہیے دل کی آنکھیں، پڑھنے کے لیے چاہیے دل کی آنکھیں، احساس تخیل کی ہے روداد قلم، احساس تخیل کی ہے روداد قلم۔ رقاصہ امید نے بازو کھولے، رقاصہ امید نے بازو کھولے، دیتا رہا ہر شیر پر خود داد قلم۔ رقاصہ امید نے بازو کھولے، دیتا رہا ہر شیر پر خود داد قلم۔ موضوع یہ سوچا ہے ہمیشہ ہٹ کر، موضوع پر سوچا ہے ہمیشہ ہٹ کر، کھلتا رہا تنقید سے نقاد قلم، کھلتا رہا تنقید سے نقاد قلم۔ مجرم کو سزا دے کے لبوں سے ٹوٹا، مجرم کو سزا دے کے لبوں سے ٹوٹا، لگتا ہے کہ جیسے کوئی جلاد قلم، لگتا ہے کہ جیسے کوئی جلاد قدم قلم۔ دنیا کی کتابوں کو پڑھو تو جانو، دنیا کی کتابوں کو پڑھو تو جانو، کرتا ہے اشاروں میں بھی امداد قلم۔ دنیا کی کتابوں کو پڑھو تو جانو، کرتا ہے اشاروں میں بھی امداد قلم۔ صدیوں کے گزرنے پر بھی قائم ہوگا، صدیوں کے گزرنے پر بھی قائم ہوگا، رکھتا ہے جو تہذیب کی بنیاد قلم۔ صدیوں کے گزرنے پر بھی قائم ہوگا، رکھتا ہے جو تہذیب کی بنیاد قلم۔ اللہ نے آدم کو تکلم بخشا، اللہ نے آدم کو تکلم بخشا، اور بعد میں اس نے کیا ایجاد قلم، اور بعد میں اس نے کیا ایجاد قلم۔ اللہ نے آدم کو تکلم بخشا اور بعد میں اس نے کیا ایجاد قلم۔ پڑتی ہے مصیبت جو ہمارے سر پر، پڑتی ہے جو مصیبت، پڑتی ہے مصیبت جو ہمارے سر پر، ہوتا ہے اسی دور میں فولاد قلم۔ لکھتی ہے سماچار قلم، پہلے سے بھی کہی لکھتی ہے سماچار قلم، حکمرانوں کی بنی جب سے وفادار قلم۔ پہلے سے بھی کہی لکھتی ہے سماچار قلم، حکمرانوں کی بنی جب سے وفادار قلم۔ اس نے مطلب دیکھا تھا، پاپ ڈھکنے سے نہیں کرتی ہے انکار قلم، پاپ ڈھکنے سے نہیں کرتی ہے انکار قلم، ایک زمانہ تھا گرا دیتی تھی سرکار قلم۔ پاپ ڈھکنے سے نہیں کرتی ہے انکار قلم، ایک زمانہ تھا گرا دیتی تھی سرکار قلم۔ شعر دیکھیں، آج کل ناشتی کوٹھے کی طوائف جیسی، آج کل ناشتی کوٹھے کی طوائف جیسی،
अब तो पैसे से फकत कर रही है प्यार कलम, वाह भाई वाह। तो पैसे से फकत कर रही है प्यार कलम। क्या उमदा शेर कहते हैं। खुदकुशी को भी गरीबों का नया शौक लिखे, खुदकुशी को भी गरीबों का नया शौक लिखे, पैसे वालों की तिजोरी में गिरफ्तार कलम। ये भाई बहुत ऊंचे बहुत उम्दा। खुदकुशी को भी गरीबों का नया शौक लिखे, क्या बात है। पैसे वालों की तिजोरी में गिरफ्तार कलम। वो भी तो शान से कहलाते सहाफी खुद को, वो भी तो शान से कहलाते सहाफी खुद को, बेश दरबार में जो आए गुनहगार कलम। वो भी तो जी, वो भी तो शान से कहलाते सहाफी खुद को, बेश दरबार में जो आए गुनहगार कलम। खुदकुशी वाला पढ़िए एक बार। जी सर। खुदकुशी को भी गरीबों का नया शौक लिखे, खुदकुशी को भी गरीबों का नया शौक लिखे, पैसे वालों की तिजोरी में गिरफ्तार कलम। सबसे ज्यादा जो गिरी हक उसी का बनता है, सबसे ज्यादा जो गिरी हक उसी का बनता है, और वही पाएगी हाकिम से पुरस्कार कलम। सबसे ज्यादा जो गिरी हक उसी का बनता है, अब वही पाएगी हाकिम से पुरस्कार कलम। और ये वो हुनर साथ तो शायर भी बना देती है, वो हुनर सब शायरों की तरफ से, वो हुनर साथ तो शायर भी बना देती है, आज भी लिखते हैं हम चूम के 2 बार कलम। वो हुनर साथ तो शायर भी बना देती है, वो आज भी लिखते हैं हम चूम के 2 बार कलम। तर्ज है, फैसले बदलेंगे एक दिन गरीबों के हक में, फैसले बदलेंगे एक दिन गरीबों के हक में, आए हाथ आए जो कभी राज असरदार कलम, हाथ आए जो पहले से। जी सर। खुदकुशी को भी गरीबों का नया शौक लिखे, पैसे वालों की तिजोरी में गिरफ्तार कलम, पाप ढकने से नहीं करती है इनकार कलम, एक जमाना था गिरा देती थी सरकार। और अच्छी शायरी से नवाजा राजेश साहब का कमाल ये रहा, अगर इनकी शायरी से इनके ख्यालात निकाल लिए जाए, कोई भी उर्दू वाला एक बहुत अच्छी गज़ल बना सकता। तो ख्यालात की बहुतात इनकी यहाँ थी और उसूल ज़ाब्तों की बहुतात उर्दू वालों की यहाँ होती है। दोनों मिल जाए तो शायरी का भी हिंदुस्तान बन जाए, यानी गंगा जमनी शायरी हो जाए। ख्यालात जो आपके यहाँ थे वाकई वो ऐसे थे कि आप राज हैं, और वो जो राज हैं 84 बरस के, उनके यहाँ ख्यालात की कमी है और आपके यहाँ ख्यालात की भरमार है। और उसको कायदे से फरोग दीजिए तो बस समझ लीजिए। जी जी बहुत उम्दा भाई, काबिल मुबारकबाद। खुदकुशी को भी गरीबों का नया शौक लिखे, और पैसे वालों की तिजोरी में गिरफ्तार करो। गिरफ्तार में ये ख्याल बांधना मुश्किल था जो हिंदी वाले ही जसारत करते हैं, इसके लिए आप काबिल मुबारकबाद हैं। और अब सुन लिया जाए आशिफ भाई बरेलवी साहब भी हो गए, आसिम साहब को सुनिए। आसिम खान साहब के आप तेवर देखिएगा, खान साहबों को जैसा होना चाहिए बिल्कुल अगर मैं घर में कहूँ ये खान साहब है या आप दीदी हैं तो आप समझ जाएंगे या ये हो ना हो कोई है पट्टा उधर। पट्टे का मतलब मजदूर तो जुते वही तो खान साहब होते हैं। तशरीफ लाएं और अपने कराम से नवाजें। क्या बताएं तुम्हें वो दौर कि था कैसा, क्या बताएं तुम्हें वो दौर के था कैसा कलम, एक जुम्बिश से ही माहौल बदलता था कलम। क्या कहने भाई, क्या क्या बताएं तुम्हें वो दौर था, क्या बताएं तुम्हें वो दौर के था कैसा कलम, एक जुम्बिश से ही माहौल बदलता था कलम। अपनी दुनिया में नए ख्वाब सजाने के लिए, अपनी दुनिया में नए ख्वाब सजाने के लिए रोज ताबीर की सूली पर रोज ताबीर की सूली पर रहा करता कलम। ये मिसरा ऐसा चुन लिया कि इसमें हिंदी के कवाफी हैं और फिर अलिफ गिराना, तो उस वजह से थोड़ा सा फंस रहा है मिसरा। रोज ताबीर की सूली पर रहा चढ़ता कलम, इसकी तहरीर से तय होती है किस्मत इसकी, इसकी तहरीर से तय होती है किस्मत इसकी, कहीं सस्ता तो कहीं महंगा भी बिकता है कलम। इसकी तहरीर से तय होती है किस्मत इसकी, कहीं सस्ता तो कहीं महंगा भी बिकता है कलम। ऐसा नादिर है
बरतने का सलीका इसका बहुत उम्दा है। ऐसा नादिर है, मिसरा ही खूबसूरत बहुत है। ऐसा नादिर है बरतने का सलीका इसका, झूठ पर भी ये गुमा गुजरे के सच्चा है कलम। झूठ पर भी ये गुमा गुजरे कि सच्चा है कलम। कैसे सच पहुंचेगा अहबाब बताओ तुम तक, कैसे सच पहुंचेगा अहबाब बताओ तुम तक, जब सहाफी ने ही है बेच दिया अपना कलम। कैसे सच पहुंचेगा अहबाब बताओ तुम तक, जब सहाफी ने है बेच दिया अपना कलम। रूह जख्मी करे एहसास को छलनी छलनी, रूह जख्मी करे एहसास को छलनी छलनी, जैसे इस अहद का हो जहर में ही डूबा कलम। जैसे इस अहद का हो जहर में ही डूबा कलम, जिसकी तहरीर में ताबीर हो बदले तकदीर, जिसकी तहरीर में तदबीर हो बदले तकदीर। ऐ खुदा बख्श दे मुझको भी कोई ऐसा कलम, ऐ खुदा बख्श दे मुझको भी कोई ऐसा कलम। फिर मुलाजा फरमाए कि साथ मेरी नस्लों की भी किस्मत जागी, साथ मेरी नस्लों की भी किस्मत जागी। मेरे वालिद ने मेरे हाथ में जो रखा कलम, साथ मेरी नस्लों की भी किस्मत जागी। मेरे वालिद ने मेरे हाथ में जो रखा कलम। मक्ता हाजिर है, अहमियत हम भी समझते हैं कलम की आसिम, अहमियत हम भी समझते हैं कलम की आसिम। इल्म की राह में एक दोस्त है हम सबका कलम, इल्म की राह में एक दोस्त है हम सबका कलम। क्या बताएं तुम्हें वो दौर था कि कैसा, क्या बताएं तुम्हें वो दौर के था कैसा कलम, एक जुम्बिश से ही माहौल बदलता था कलम। बहुत अच्छे जनाब आसिम खां अफरीदी साहब, बहुत अच्छी शायरी से नवाजा। शायरी को आपने आसान से मुश्किल कर दिया। ये काफिया जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, अगर बहर कोई आसान कर लेते तो बहुत सबक किया था। वो सिर्फ इनकी जो सख्तगिरी है उसकी वजह से बहर जब टिपिकल हो गई तो वो काफिया फिट नहीं हो रहा था। उसको फिट करने के जो ये शायर हैं तो इन्होंने मुश्किल राह से गुजरते हुए मुश्किल शेर निकाले, वरना आसानी से अच्छे शेर निकल सकते हैं। मेरा ख्याल यही कुछ हुआ है जी। अपना जपना जो उन्होंने काफिए बांधे उसके लिए कोई आसान मिसरा बन जाता है, लेकिन ये सब होता है। जो मुश्किल राहों से गुजर के आए वही तो अच्छा शायर है। इसके लिए आपको मुबारकबाद। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।